کوئی سہولت نہیں. آپ کے سامنے سارا کوئٹہ شہر کھنڈرات بن گیا تھا. ایسا روڈ نہیں کہ وہ ٹوٹا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے. سارا لوگ ٹینکر لاتا ہے, 2500 روپے کا ایک ٹینکر ہے. پھر وہ 2022 میں نصر اللہ زیر نے اسمبلی میں قرارداد پاس کی 2032 تک کہ یہ 15 اضلاع پر پراپرٹی ٹیکس نہیں لگے گا. تاجروں کو اور عوام کو کوئی سہولت نہیں مل رہی ہے. نیٹ ورک حالات آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں, موبائل کام نہیں کر رہا ہے. سر جی بات ہے کس کی نشاندہی ہم لوگ کریں, کس کی کریں. ابھی چپکے سے تو اس کا جو ہے معزز صاحب حضرات, ہم آپ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کے شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنے مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے پریس کانفرنس میں شرکت کی. ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری پریس کانفرنس کو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں مناسب کوریج دیں گے. معزز صاحب حضرات, بلوچستان ایک پسماندہ اور ہر لحاظ سے پسماندہ صوبہ ہے. بلوچستان کو پراپرٹی ٹیکس سے چھوٹ دی جائے. اس سلسلے میں صوبائی اسمبلی نے باقاعدہ ایک قرارداد بھی منظور کی ہے جو ریکارڈ پر موجود ہے. مرکزی اور صوبائی حکومتوں تمام ہمسایہ ممالک بالخصوص افغانستان, ایران, چائنا کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بہتر بنائے, کیونکہ جب ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارتی ذریعہ بحال ہوں گے تو اس سے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور ہمسائی ممالک کے ساتھ ہر قسم کے مسائل اور اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. بلوچستان میں تمام روڈ بالخصوص جو میراج خیل روڈ پر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے اور ٹانگ کی طرف سے جلد از جلد کام شروع کیا جائے اور بلوچستان ہائی کورٹ کی احکامات کی روشنی میں روڈ کے کام کو مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے تاکہ لوگوں اور تاجروں کو آمد و رفت میں سہولت میسر آ سکے. سابق حکومتوں نے عوامی مفاد کے لیے جو منصوبے شروع کیے تھے, ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے جامع پالیسی مرتب کی جائے تاکہ عوامی فنڈز کی ضائع کو روکا جا سکے. معزز صاحب حضرات, جو میں مرکزی انجمن تاجران کے ضلعی صدر باران خان کلیوال اور جنرل سیکرٹری محمد الدین خروٹی ہے, ضلعی انتظامیہ اور دیگر ادارے کسی بھی مسئلے پر مرکزی انجمن تاجران کے صدر سے رابطہ کرے اور تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے پوری اقدامات اٹھائیں. معزز صاحب حضرات, بلوچستان امن و امان کی صورتحال روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے جس سے تاجروں اور عوام میں عدم تحفظ احساس پایا جاتا ہے. گزشتہ رات بھی دکی میں کوئلہ لے کر جانے والے ٹرکوں پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک ڈرائیور کو شہید کر دیا جبکہ دیگر ڈرائیوروں نے بھاگ کر اپنی جانیں بچائی, جس کے بعد نامعلوم افراد نے ٹرکوں پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی جس سے کروڑوں روپے مالیت کی ٹرک جل کر خاکسار ہو گئے. دکی سمت دیگر علاقوں میں آئے روز اس قسم کی واقعات معمول بن چکے ہیں جس سے صوبے میں سرمایہ کاری متاثر ہو رہی ہے. حکومت تاجروں اور عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اور عملی اقدامات اٹھائے اور دہشت گردی کے واقعات میں ملوث عناصر کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. معزز صاحب حضرات, جموں میں پاک افغان بارڈر پر پاسپورٹ کی شرط عائد کیے جانے کے خلاف پرلت کے زیر اہتمام گزشتہ کئی ماہ سے چمون میں تاجروں اور عوام نے دھرنا دے رکھا ہے اور گزشتہ کئی دنوں سے پروڈکٹ آپ کو ہر قسم کے آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا جس کے باعث سڑک کے دونوں جانب ہزاروں کی تعداد میں سامان سے لوڈ ٹرک پھنس کر رہ گئے ہیں. بین الاقوامی شاہراہ بند ہونے کی وجہ سے سینکڑوں ٹرک مختلف ہوٹل پر کھڑے ہیں اور ان مالکان تاجروں سے فی دن 20,000 روپے کا مطالبہ کر رہے ہیں جو تاجروں کے بس کی بات نہیں ہے. وفاقی اور صوبائی حکومتیں پرلت کے مطالبات کو پوری طور پر تسلیم کرے اور بین الاقوامی شاہراہ کو کھولنے کے لیے اقدامات اٹھائیں تاکہ تاجر حضرات مزید نقصان سے بچ سکیں. معزز صاحب حضرات, کوئٹہ شہر میں گزشتہ کئی ماہ سے مختلف روڈ کو گریڈنگ کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیا گیا جس کی وجہ سے باچا خان چوک, کواری روڈ, منان چوک, سریاب روڈ, مقصد چوک, سرکی روڈ سم دیگر سڑکوں پر بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے اور سارا دن شہر میں ٹریفک جام سے شہری اور تاجر
मरीज बंद कर रहे गए, जबकि दूसरी जानिब सड़कों के दरमियान से गुजरने वाले बड़े बड़े नालों को सफाई के बाद उनकी स्लीप अभी तक वापस नहीं रखी गई है, जिससे हादसात रोनमा हो रहे हैं। हम कमिश्नर क्वेटा और एडमिनिस्ट्रेटर क्वेटा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और दीगर हुक्काम बाला से मुतालबा करते हैं कि क्वेटा की शाहराहों की पूरी तौर पर तामीर की यकीनी बनाए और नालों पर पूरी तौर पर सदीप रखे जाए ताकि शहरियों और ताजरों को मुश्किलात से निजात मिल सके। इसी तरह गुज़िश्ता कई सालों से दरियाब रोड, सब्ज़ार रोड, मगरबी बाईपास रोड क्वेटा टू कुचला के तामीर को पूरी तौर पर यकीनी बनाया जाए। रोड की तामीर सुस्त रवि का शिकार होने की वजह से, धूल और मिट्टी की वजह से ताजरों और आवाम की जिंदगी उजबरन बन गई कर रह गई है। वस्सलाम। वो भी तो जो है 1,20,000 से कम कोयटा जो शहर के मरकज में किराया नहीं है। असल मसला तो उनसे ताजरों को, दुकानदारों को कि इनका किराया भर नहीं सकते, कृषि के मजदूरों में है, हुकूमत से भी मुतालबा करके वापदारों में, लेकिन इन ताजरों को क्यों बात नहीं करते जिनकी दुकानें हैं, जिन्होंने किराए के जो है बढ़ा दिए हैं, मुश्किलात का सामना है, जिसमें जो तकलीफ मानते हैं उससे मानते हैं। कोई बड़े जो ताजरों के नाम पर दुकानें हैं जो बहुत बड़े यहाँ पर बिल्डर्स है, उनके खिलाफ कोई बात नहीं करते। जो असल मसला दुकानदारों का कोई काफी ज्यादा किराया है। बात है ना भाईजान, आप प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने का मुतालबा कर रहे हैं। हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स माफ से प्रॉपर्टी शहर है मकान जो है वो हमारी सरमायादार है, बिल्डिंग बना है, उसका प्रॉपर्टी टैक्स होता है, तो जो किराएदार दुकानदार है उससे उसके लिए आपने मुतालबा नहीं किया। आप ये उस प्रॉपर्टी को माफ करने के लिए वो भी सरमायादारों को ताबूत देने के लिए वो तो सरमायादार, एक तो सरमायादार नहीं है, सारा शहर तो सरमायादार नहीं है। इसमें अगर 100 बंदे सरमायादार है, 100 पर गरीब है, इतना बड़ा टैक्स हम कैसे अदा करें? आपको मालूम है कि ये टैक्स अगर हम देवे तो ये सारा आवाम पर हम डाल देंगे, तो ये तो आवाम के लिए नुकसान है, हमारे लिए कि हम तो अदा करेंगे। लेकिन ये ऐसा टैक्स है, अभी एक एक फुट के हिसाब से इसने टैक्स डाला हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स, और एक एक फ्लोर पर इसने डाला हुआ है। अगर दुकान का उसने ले लिया, फिर ऊपर जो फ्लोर है उसका भी ले रहा है, तीसरा फ्लोर पर भी रहा है, चौथा फ्लोर पर भी ये ले रहा है, और तहखाना भी नाप करके उसका भी ले रहा है। ये ऐसा टैक्स नहीं है, बहुत नारवा टैक्स है, बहुत जुल्म है। एक दुकान का 12-13 लाख पे टैक्स है, अभी 30,000 टैक्स है सालाना, फिर 12-13 लाख टैक्स बनता है इसका। हम लोगों ने सारा टोटल लगाया हुआ है और हम लोग असेंबली पर भी गया है, असेंबली में करारदाद भी मंजूर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये हमारा जो बाहर के ज़रिए है तो इनको ये तंग कर रहा है, बार बार इसके लिए नोटिस भेज रहा है। जैसे हमारे जो वाला आए हुए कि हम लोगों को नोटिस मिला हुआ है, ये तो बाकायदा असेंबली का वो भी आज बारान साहब ने निकाला है करारदाद जो पास हुआ है कि 2032 तक ये टैक्स जो है ये माफ है, मतलब किसी से नहीं ले लेंगे बाहर के जो हमारा ज़िले बलूचिस्तान का, तो इसके बावजूद नोटिस भेज देंगे। आपका सवाल का जवाब ये भाईजान, कुछ खराबियाँ हम लोगों में खुद की ताजरों में भी है, हम लोगों के जो है ना वो माशरे में, वो इसलिए आपको शायद पता नहीं है कि एक दुकानदार अगर दुकान 1 लाख रुपया किराए पे लेता है परस तो आज़रफाली चुपके से जाके उनसे पूछता है कि भाई 1.5 लाख रुपया फिर मुझे दे, वो इस लालच में आ जाते हैं, फिर किराया जो दुकान का बढ़ जाता है। अगर हम इस आदत को छोड़ देंगे ताजर लोग जो हमारा भाई है, तो फिर इंशाल्लाह कोई किराया नहीं बढ़ेगा। किराया हम लोगों ने खुद बढ़ाया हुआ है अपने आप पर। याद करें ना, असल मसला तो ताजरों का ये मैंने उनसे बात की, जो आम दुकानदार है ना, आप लोग सर जी जब हमने बात की उनका 1,20,000 देना, हाँ सर जी, 20,000 हाँ सर जी बात है, सर जी बात ये ना, सर जी बात है, किस किस की निशानी हम लोग करें, किस किस की करें? अभी चुपके से तो उसका जो है ना वो नहीं होता है। ये बताएं कि गवर्नमेंट टैक्स तो मांग रही है, यानी हम प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के टैक्स हैं, बिजली के बिल में आप दुकान टैक्स डाल रहे हैं, गैस के बिल में आप दुकान टैक्स डाल रहे हैं, यानी ऐसे टैक्सेस मेंशन होते हैं जिसमें कोई निशानदेही नहीं होती, नामालूम टैक्स होते हैं। इसके बदले आपको सहूलतें क्या मिल रही है? कोई सहूलत नहीं, यानी शहर में सफाई की क्या बिल्कुल, हाँ आपका सिस्टम आप देखिए क्या कोयटा शहर ऐसा लग ही नहीं रहा कि जो बाकी का बातें मुश्किल है, क्या ये कोयटा के शहरी का कोयटा के ताजर करने का या अपने तो कोयटा भी इस्लामाबाद कराची लाहौर के शहर में
कोई सहूलत नहीं है। आपके सामने सारा क्वेटा शहर खंडरात बन गया था। ऐसा रोड नहीं कि वो टूटा नहीं है। दूसरी बात ये है कि पानी का एक कतरा नहीं है। सारा लोग टैंकर लाता है, 2500 रुपये का एक टैंकर है, 3000 तक। तो ये हम लोग तो ये इसलिए रो रहे हैं कि आप इतना टैक्सी दे रहे हैं, कम अज कम ये क्वेटा शहर के रोड तो बनाओ, क्वेटा शहर के नालियाँ तो बनाओ। बस पीछे जब्बू में डालता है, भागता है, फिर कोई परेशानी हाल नहीं है। अभी जब ये देखो क्वालिटी स्वीट के सामने इसने ये नाला खोदा, 1 महीना हुआ है, ये नाला ऐसा पड़ा हुआ है, कोई परेशानी हाल नहीं है। बादशाह खान चौक पर रोड का खुदाई किया है, आप देखो रोजे में अभी तक ऐसा पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं। इसी तरह से जो मैंने इस पर जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इसी तरह कुवारी रोड, दूसरा रोड, तीसरा रोड, सब का नालियों से वो उठाया है, बस ऐसा पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं। इसने पैसे जेब में डाल दिया, खैर खैरियत है। तो टैक्स के हवाले से मैं वजाहत करता हूँ, ये सूबाई एजेंसा है, पहले 12 जिले थे, 10 जिले, अभी 15 अजला है। जब मरकजी एजेंसियाँ खत्म हुई, सूबाई एजेंसियाँ ऑलरेडी इसके साथ खत्म हुई। फिर गवर्नमेंट ने 2018 से 2023 तक 5 साल रिलीफ दिया था। फिर वो 2022 में नसरुल्लाह ज़ीर ने असेंबली में करारदाद पास की 2032 तक कि ये 15 अजला पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। इसका असेंबली करारदाद पास हुआ है, बाद इसके बावजूद लोगों को नोटिस दे रहे। हमारा पूरे सूबे का मुतालबा नहीं है, हमारा 15 अजला है, इस पर प्रॉपर्टी टैक्स, और इधर जो नाजायज टैक्सें लगी है ये तो दुकानदार पर किराया बढ़ेगा। मालिक टैक्स जमा करेगा, उसको बोलेगा कि किराया बढ़ाओ, मैं इतना टैक्स देता हूँ, ये देता हूँ। और टैक्सें हमारा मोबाइल कार्ड में है, बिजली बिलों में है, गैस की बिलों में है, पानी में है, प्लाना डिंगा हर बिल में है। और ताजरों को और आवाम को कोई सहूलत नहीं मिल रही है। नेटवर्क हालात आप लोग खुद देख रहे हो, मोबाइल काम नहीं कर रहा है, कितने टावर लगे हुए हैं, आप लोगों को सबको पता है। आप लोग हम लोगों से ज़्यादा आप लोग डिस्टर्ब है। इसका जिम्मेदार सरकार है। और दूसरी बात आपने नीचे जमीन पे खंडरात बना हुआ है, लेकिन ऊपर तो माली पे बन रहे जो बिल्डिंग आपके ताजर बना रहे, जो 100 फुट की जगह में अच्छे मंदिर बना रहे, उसकी तरफ आप नजर रही है। सिर्फ इसकी नजर है कि हमें इधर ऊपर जाने के लिए सहूलत दे दो और नीचे रोड बना, तो रोड के नालियां सारे जो नहीं बन के आएगा। बात सुनो, ये नक्शा भी हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दे रहा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसमें कितना पैसे मांग रहे हैं, आप जाओ इसके पास, आप एक कागज पास करो बगैर रिश्वत। बारी बारी रकम तलब करता है, फिर इन प्लाजों का ऑर्डर देता है कि बनाओ। तो आपके सामने सब कुछ। इसमें हमारा दुकानदार का क्या कसूर? दुकानदार तो वाकई ये लालच करता है कि हमारा एक मंजिल ज़्यादा हो जाए, मेरे पास फिर ज़्यादा किराया आता है। लेकिन ये तो सरकार के ऊपर है, पाबंदी तो इनके ऊपर है कि ये पाबंदी लगाए हुए, ये उसके पास जाए हुए, रोज़ाना की बुनियाद पर बंदे जाता है और देखता है कि कितना मंजिल हो गया था। फिर जब ये मंजिलें बनाता है, ये बारी बारी रकम तलब करता है, इनको पैसे देता है, वो मंजिल बनाता है। इधर कौन सा फरिश्ते बैठे हुए आपके सामने सब लोग, हर इदारा आपके सामने है। ये तो सरकार का काम है कि सरकार इस पर पाबंदी लगाए। हमारा साथ कौन से यार, ना खड़ी है ना वाला ना कुछ है, हम लोग क्या करें? अखलाकी प्रोग्राम किए। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।